Okay, do join firstly, everyone. Okay, let's begin now. It's already 12 and 20. You all people are there? Mari Twinkle, Pratik Singh, Garima Kesri, Present, sir. Achal Verma, Himatri Upadhyay. Yes, sir. Anyway, so let's get started. Okay, so in the last class, we have initiated the concept of advertising, the basic definitions, the scope and nature of advertising has been taken care in the last class. Now, today, in the extension of advertising, we will start the differentiation, different categories, the classification or types of advertising. The advertising do not comprises a single format, but come up with the number of alternatives, the number of categories. Advertisement doesn't mean that where a company is standing behind the selling the product, and that is why the promotional communications are needed by the company. So this is one part of the advertising, but there are other different categories of advertisement which are followed by the companies. So let's talk about its individual category of advertising, different types of advertising. So the first is primary versus selective advertising. Primary versus selective advertising. So what is primary advertisement? Any idea? What the primary advertising stood for?
and the selective. See, the primary advertising are those kind of advertisement content, the communications which are spreaded by the industry, not by the individual company or the producers. When certain communications related with either the overall image of the industries, not industry, or the image of the common product which are being produced by all the company which are listed under the industry, then this kind of advertising is known as primary advertising. Take an example. There are some private universities association. You know that there are a number of universities of private universities operating in India. Maybe the government associations are also there, but majorly in teaching, the private universities associations are there. So, what is the function of these association that they rather representing an individual institute or their courses or their benefits? They collaboratively advertise the overall courses and the universities which are located under the common roof, under the common umbrella. They do not advertise the individual institutes and their courses separately, or where a single institute do not come up with their overall informations. But collaboratively, the communications are spread it out, and these communications are done by the industry itself. It's an example like we have taken if it's a private universities associations, then this association usually advertise the courses and the overall institutes together and not focusing upon the individual institute and their courses. So it's called the industrial advertising. It's not the company advertising. There is difference between the industry and the companies. Industry is what? Industry is the associations of a group which deals with the common products or which stands for the common purposes. And the companies are all those individual entity, the producers, the company who works under that association. It's called the company. तो दोनों में जो डिफरेंस है, प्राइमरी सेलेक्टिव की बाद में बात करेंगे. प्राइमरी एडवर्टाइजिंग उस तरीके का कम्युनिकेशन सिस्टम है जहां पे इंडस्ट्री अपने सारे जो मेंबर्स हैं, जो आपके कंपनीज की जो मेंबरशिप है उसकी कम्युनिकेशन करते हैं. यूनिवर्सिटी का हमने बात कर दिया. ऐसे कई है, जैसे मान के चलिए कि कई बार आपने देखा होगा जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होते हैं उनका भी एक एसोसिएशन है, उनकी भी एक आयुर्वेद इंडस्ट्री है. कई बार आप देखिएगा कि कोई ऐसा एक कॉमन एडवर्टीजमेंट आता है जिसमें वो इंडस्ट्री आयुर्वेदा इंडस्ट्री जो है किसी पर्टिकुलर आयुर्वेद दवाई बनाने वाले कंपनी को प्रमोट नहीं कर रही है, बल्कि कॉमन एडवर्टीजमेंट के साथ आ रही है और ये कह रही है कि आयुर्वेदा के प्रोडक्ट को यूज करिए और ये आपके हेल्थ के लिए सेफ है, कोई इसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस नहीं है और आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा है. वहां पे जो एसोसिएशन आयुर्वेद का उसने किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल फार्मा कंपनी का जो कि आयुर्वेदिक दवाई बनाते हैं, लाइक डाबर हो गया, बैद्यनाथ हो गया, पतंजलि हो गया, हिमालय हो गया, वो उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, उसके प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये कंपनियां जो कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को बनाती है उसको कॉमनली एडवर्टाइज कर रही है, एसोसिएशन का एडवर्टाइज कर रही है. अगर एक बैंकिंग एसोसिएशन, एक अपना एक एसोसिएशन होता है बैंक का, उनका उनका प्राइवेट बैंक का एसोसिएशन होता है, पब्लिक बैंक का एसोसिएशन होता है. अगर उन सारे बैंक्स के लिए आरबीआई आरबीआई एक ऐसी बैंक है जो इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर बैंक का एडवर्टीजमेंट नहीं करेगा. तो जो कॉमन पॉलिसी है जो बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड, चाहे वो रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, चाहे वो डिक्लाइन इन इंटरेस्ट रेट हो गया और इंक्रीमेंट इन इंटरेस्ट रेट हो गया, जो लोन की पॉलिसी है जो चेंज हो रही है
वो हो गया जब इस तरीके की बातें जो आरबीआई है कॉमनली स्प्रेड आउट करती है पब्लिक के बीच में कि अब से चाहे कोई भी बैंक हो उसके अंदर जो हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट रेट है वो 9.5 होगा फॉर एग्जाम्पल। तो ये अपने आप में जितने भी बैंक्स हैं जो कि आरबीआई से एफिलेटेड हैं उन सभी का एडवर्टीजमेंट हो रहा है या उन सभी का कम्युनिकेशन कॉमनली आरबीआई कर दे रही है क्योंकि आरबीआई इज द हेड द एसोसिएशन ऑफ ऑल बैंक्स। सो यहां पर हम किसी इंडिविजुअल कंपनी की बात नहीं करते हैं, इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन होता है। उस इंडस्ट्री के अंदर जितने पर्टिकुलर कंपनीज हैं या उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम साथ एक साथ ही हम फोरकास्ट कर देते हैं। So that kind of advertisement is known as the primary advertisement. Hope I think you are understood with the term primary. Now coming to the selective advertising. Selective advertising is the individual advertising of a company. अगर मैं बात करूं कि अगर आरबीआई ने कहा है कि भाई इतने परसेंट का जो इंटरेस्ट रेट है वो जो है सभी बैंकों के लिए अनिवार्य है, मैक्सिमम मैक्सिमम एक डिसाइड तो कर लिया, लेकिन जो मिनिमम ऑब्लिगेशन से बैंक अपने बिहाफ पे स्लाइट पॉइंट कुछ परसेंट का कर सकती है। जैसे कुछ बैंक का आप देखिएगा डिफरेंस आता है उनके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, चाहे फिक्स डिपॉजिट करिए या टर्म डिपॉजिट करिए, उसके अंदर कुछ वेरिएशंस होते हैं। कोई कंपनी कह रही है कि हम आपके फिक्स डिपॉजिट पे, कोई बैंकिंग इंडस्ट्री कह रही है हम आपके डिपॉजिट्स पे 6.5 का जो इंटरेस्ट रेट देंगे एनुअली, कोई दूसरा बैंक स्पेशली प्राइवेट सेक्टर बैंक आके कहता है कि हम आपको 7% का देंगे। तो यहाँ पे अब जो एडवर्टीजमेंट या कम्युनिकेशन यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे हो गया। इंडिविजुअल लेवल पे कंपनी जो प्रोड्यूसर्स है अपने एडवर्टीजमेंट कम्युनिकेशन के लोगों को पहुंचा रही है, तो इसको हम कहते हैं सेलेक्टिव एडवर्टीजमेंट। अब आयुर्वेदा के अंदर एसोसिएशन के अंदर अगर ये कह रही है जो आयुर्वेदा एसोसिएशन कह रहा है कि सिर्फ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को खरीदिए, मेडिसिन को खरीदिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल है, तब आयुर्वेद के अंदर अंदर जितनी भी छोटी मोटी कंपनी है, हिमालय अपने तरीके से अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट कर रही है, पतंजलि अपने प्रोडक्ट का अलग तरीके से एडवर्टीजमेंट कर रही है, बैद्यनाथ अपना अलग कर रही है। तो इस तरीके से वो इंडिविजुअल एफर्ट हो गया जो कि कंपनी सिर्फ अपने प्रोड्यूसर्स को या अपने इमेज को लोगों तक पहुंचाती है, वो सभी के बारे में नहीं सोचती है। तो ऐसे एडवर्टीजमेंट को हम कहते हैं सेलेक्टिव एडवर्टाइजिंग। So the primary and the selective advertising. Primary advertising are those kind of communications which spread out the communications materials to the target audience related with the association or the industry, and the selective advertisings are all those category of advertising which spread out the messages pertaining to each individual company, products and their images. अंतर क्लियर है दोनों में? प्राइमरी और सेलेक्टिव में क्या डिफरेंस है? कि प्राइमरी एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री के द्वारा किया जाता है एंड सेलेक्टिव एडवर्टीजमेंट जो है वो इंडिविजुअल कंपनी के थ्रू ब्रॉडकास्ट किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है। Now take the standard definitions. The demand for a generic product of a whole industry is defined as a primary demand, such as demand for television, receiver, motor car, etc. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले गया भाई, कोई कंपनी जो है कॉमनली जैसे एलईडी टेक्नोलॉजी हो गई, ओएलईडी टेक्नोलॉजी हो गई, स्मार्ट टीवी का टेक्नोलॉजी हो गया, तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन है उसने कह दिया कि भाई मार्केट में जो नया स्मार्ट टीवी का कंसेप्ट आया है आप किसी भी कंपनी से खरीद सकते हैं। मार्केट में जो है नई तरीके का मोटर व्हीकल आया है, कार आया है जिसके अंदर आप ऑटोमेटिक गियर बॉक्स अवेल कर सकते हैं। ये कॉमन एसोसिएशन का एडवर्टीजमेंट हो गया। अब उसके अंदर हुंडई कुछ कहेगा, मारुति सुजुकी कुछ कहेगी, टोयोटा कुछ कहेगी। So it's the industrial effort, whether it is a innovations, whether it is some policy change, whatsoever. When the association spread out the messages about this new phenomenon, then this is called the primary. But when individual come up with their own communications, telling about their policies, their products ingredients, the benefits, then this is called the selective advertisements. Selective demands recognized as a demand for a specific brand such a Hyundai motor car. अभी हमने ऊपर वाले में एग्जांपल लिया है इस पे कि भाई एसोसिएशन कह रहा है कि जो टेलीविजन के अंदर इनोवेशन हुआ है, एलईडी टेक्नोलॉजी आ गई है,
मोटर व्हीकल के अंदर एसोसिएशन आया गया है, मोटर गियर बॉक्स उसके अंदर डाल रहे हैं, ये इंडस्ट्री कर रही है। लेकिन सेलेक्टिव डिमांड कैसे हो गया कि जैसे कार बनाने वाली कंपनी अगर सामने आके हुंडई कहती है कि हुंडई हमारे अंदर इस तरीके की जो ऑटो गियर बॉक्स वाली टेक्नोलॉजी है पर्टिकुलर, तो वो सेलेक्टिव बन जाती है। Generally, primary demand advertising is involved in trade association to generate a general demand for the products of the automobile industries. Concerned selective demand advertising is designed by the companies who are interested in selling their own products. इंडस्ट्री जो है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट वैरायटी को या कंपनी की अपनी जो इंडिविजुअल स्पेशलिटी है वो उसको इनहेंस नहीं करेगी, वो कॉमनली इंडस्ट्री क्या प्रोडक्ट बनाती है या क्या इनोवेशन है उसके बारे में बताएगी। अब कंपनी कंपनी जो है जो उस इंडस्ट्री के अंदर लाइक करते हैं अपने अपने तरीके से अपना एनहांसमेंट कर सकती है। पहला हो गया, लेट्स टॉक अबाउट द अनदर कैटेगरी ऑफ एडवर्टाइजिंग, द प्रोडक्ट वर्सेस इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग। प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग सभी को पता है कि व्हेन ए कंपनी हैव सम वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज टू बी सोल्ड आउट before the customer, then this is called the product advertisement. And the institution, when the company do not promote their product or services to the customer, but they try to enhance their brand image, their positioning, their financial strength, their image, their goodwill in front of people, public, then this is called the institutional advertising. प्रोडक्ट के अंदर सिंपल सी बात है, जितने भी हम शैम्पू, साबुन या गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी मोबाइल का जो हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं वो तो प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट हो गया, जहाँ पे हर कंपनी क्या एफर्ट लगाती है कि हम क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं और क्या स्पेशलिटी हमारी है, क्यों आप उसको खरीदेंगे वो बता देंगे। इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग का मतलब है कि अपने प्रोडक्ट को एनहेंस नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं अपने एडवर्टीजमेंट में बता रहे हैं कि भाई हम एक लीडर है, मार्केट लीडर है, हम इस इंडस्ट्री के अंदर लीड करने वाली नंबर वन कंपनी है। जैसे आप एक कॉमनली चीज सुनते होंगे, द फलाना कंपनी इज अ नंबर वन कंपनी इन इंडिया। आजकल के केस में हर कोई कंपनी ये कमिट करती है कि आई एम दी नंबर वन, होड़ लगी हुई है। तो ये जो स्टेटमेंट नंबर वन वाला जो स्लोगन कंपनी लिखती है वो किसी प्रोडक्ट को एनहांस नहीं कर रही है, वो क्या कर रही है अपने ब्रांड इमेज को एनहांस करने की कोशिश कर रही है कि मैं दूसरों से कैसे बेहतर हूं और मुझे नंबर वन का खिताब क्यों मिला। तो दैट इज द इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग। टेक एन एग्जांपल ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, लाइक एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, एक तरीका होता है कि अपने अंदर जितने भी उसके कोर्सेज हैं, उसकी फीस डिटेल है, उनका जो प्लेसमेंट्स हैं वो बताने का काम कर रही है, तो उसकी सर्विसेज एडवर्टीजमेंट हो गया। इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग कैसे होगा कि भाई हमारी कॉलेज या हमारी यूनिवर्सिटी जो है नेक की रैंकिंग में ए ग्रेड लेकर आई है, एनबीए के रैंकिंग में ये कैट मिला है मुझे, मैं यूजीसी से एफिलेटेड हूँ, मैं 20-25 साल से काम कर रहा हूँ, वगैरह वगैरह, मैं टॉप 100 यूनिवर्सिटी या कॉलेज में लाइक कर रहा हूँ। तो वो क्या कर रही है अपने कोर्सेज या सर्विसेज को वो एनहेंस नहीं करने का काम कर रही, वो क्या कर रहे हैं अपने इंस्टीट्यूशनल इमेज को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। तो वैसे कैटेगरी को हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग। I think it should be clear to you. Product advertisement is what, where the company try to promote their product variety, the service significance, and other benefits which are specifically pertaining to the product specialty. But the institutional advertisement, the company never makes their effort in promoting their product. They try to promote their brand image, their goodwill to the general public. The commonest form of advertising is a product advertising, where the company attempts to sell its product or service through advertising. Institutional advertising, to differentiate it from product advertising, here the goal is to sell the idea to the target reader to patronize for particular producers or retailers or shopkeeper for reasons explored such as wider selective reliability, etc. हम अपनी खूबियों को बताते हैं इंस्टीट्यूशन में, how we serve our customers in a better way, how each customer is important for me, वगैरह वगैरह. So when this kind of
circulations are done by the company, it's called the institutional advertising. But when company come up with their product specialty, then what kind of product innovations are there with the company? What are their specialty? What are the price? What are the features? What are the warranty and guarantee, etc. and so forth. So this is called the product advertising. Now the third category is sponsorship advertising. नाम से आपको साफ ये क्लियर हो रहा होगा स्पॉन्सरशिप एडवर्टाइजिंग क्या होता है कि जिसमें हम जो प्लेटफॉर्म यूज करते हैं वो प्लेटफॉर्म हमारा नहीं होता है, अपना खुद का नहीं होता है, बल्कि हम किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के या दूसरे जो इवेंट के प्लेटफॉर्म को या स्टेज को या उनके एडवर्टाइजिंग स्पेस को यूज करते हैं। हम स्पॉन्सरशिप पैसा देते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशंस अपने प्लेटफॉर्म के जरिए हमारे ब्रांड को एनहांस करता है। मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमने सिर्फ पैसा दिया। अब उस जो ऑर्गेनाइजिंग कंपनी है, जो इवेंट कंपनी है, वो अपने प्लेटफॉर्म पे हमारे ब्रांड को एनहांस करेगा, प्रमोट करने का काम करेगा। आप सिंपल सी बात है, देखते होंगे जो क्रिकेट का मैदान होता है, मैदान के चारों तरफ जो है जो उनका बॉर्डर एरिया होता है उसमें कई कंपनीज के टैगलाइन, उनका एडवर्टीजमेंट थीम या स्पेशलिटी लिखी होती है। तो ये चीजें वो कैमरे की नजर में आती है, पूरा वर्ल्ड उसको देखता है, कंपनी का एडवर्टीजमेंट हो गया। So company pays the sponsorship amount to all these organizer to promote their brand worldwide. आप किसी टीवी इवेंट को देखते हैं, किसी लाइव शो को देखते हैं, वहां पे पीछे बैनर में जो स्पॉन्सरशिप कंपनी होती है उनका एडवर्टीजमेंट फ्लैश होता रहता है, या जो एंकर्स होते हैं, एंकर बार बार प्रोग्राम के दौरान ये बताता है कि दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय दिस कंपनी, Vivo, Oppo, Samsung, whatever. So this is called the sponsorship advertisement, where the company do not place their own effort or to design their ads through ad agencies, but the same is done by the other organization, where ultimately the product advertisements are shown and advertised by the other agency, other organizing firm. That's called the sponsorship advertising. Sponsorship advertising is the type of advertising where a company pays to be associated with a specific event. Event is का main focus है. In fact, sponsorship advertising is very prevalent with charitable events. Besides from charitable events, companies may sponsor local sporting teams, sport tournament, fairs, and other community events. यहाँ पे ये चीजें कुछ जो इवेंट की कैटेगरीज दी गई हैं कि कैसे कैसे इवेंट पे कंपनी यूजुअली स्पॉन्सरशिप पे करती है अपने एडवर्टीजमेंट को एंडोर्स करने के लिए। चैरिटेबल इवेंट्स है कोई, वहां पर अपने बैनर्स लगा दिए। कंपनीज स्पोर्टिंग टीम जो खेल का मैदान हुआ है वहां पे कर दिया। स्पोर्ट टूर्नामेंट के अंदर मेला कोई बहुत बड़ा है लगा हुआ है, उस मेले के अंदर चारों तरफ पोस्टर बैनर्स लगा दिए, डिस्प्ले लगा दिए, डिजिटल डिस्प्ले एंड अदर कम्युनिटी इवेंट्स। तो वहां पर कंपनी यूजुअली अपने ब्रांड को इनहेंस कैसे करती है, किसी दूसरी कंपनी के या ऑर्गेनाइजिंग जो फॉर्म है उनके प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए अपने ब्रांड को एनहांस करती है। ओके, द फोर्थ कैटेगरी इज कमर्शियल वर्सेस नॉन कमर्शियल एडवर्टाइजिंग। नाम से क्लियर होना चाहिए आपको। कमर्शियल मीन्स व्हाट, वेयर देयर इज अ कमर्शियल पर्पस, there is a buying and selling. The main purpose of such commercial advertising communication is buying and selling, and through this event getting profit from the target audience. That's called the commercial advertising. All kind of advertising which comes in on the television, on the newspaper, the magazine, or the websites, whether the producers or seller try to enhance their products to get profit from the customers, is a commercial advertisement. जनरल काइंड में हम जितने भी एड्स देखते हैं, चाहे वो टीवी पे देखते हो, रेडियो पे सुनते हैं, वेबसाइट पे देखते हैं, चाहे किस प्रोडक्ट की एनहेंसमेंट हो रही है, प्रोडक्ट की स्पेशलिटी को कंपनी बताने की कोशिश कर रही है ताकि हम उस प्रोडक्ट से अट्रैक्ट होकर खरीदें और कंपनी को पैसा मिले। तो वैसे एडवर्टीजमेंट या कम्युनिकेशंस को हम कमर्शियल एडवर्टाइजिंग कहते हैं। अब इस रियल वर्ल्ड में कुछ ऐसे भी एड्स होते हैं या कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं जहां पर जो कंपनी है या जो अनाउंसर है
वो प्रॉफिट कमाना नहीं चाहती है, बल्कि दूसरे मैसेजेस को स्प्रेड आउट करना चाहती है, जो कि नॉन प्रॉफिट होता है। जैसे non-commercial advertising is advertising indulged in by non-profit organizations such as government or charitable institution to support ideas, solicit donation, etc. आप टीवी के अंदर कई ऐसे एड्स देखते होंगे जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ कम्युनिकेशन इनिशिएटिव लेकर आती है, जिसमें आपको अ, सलाह देती है, या जिसमें वो आपको अपील करती है कि लाइक डोनेट योर आइज, या फिर फॉर एग्जांपल जागो ग्राहक जागो is the government initiatives like right to information, RTI, donate your stop tobacco product, stop consuming alcohol. So these are something which is not shown to earn profit, or there is no any sponsors body who pays the amount to the advertising channels to earn profit. नहीं, ये पब्लिक वेलफेयर के लिए चैरिटेबल, या एक जो सिटीजन को अवेयर बनाने के लिए, जागरूक करने के लिए जो पब्लिक मैसेजेस आते हैं, स्पेशली जो गवर्नमेंट लेकर आती है, तो ऐसे एडवर्टीजमेंट को हम नॉन कमर्शियल एडवर्टाइजिंग करते हैं। ये मीडिया पे तो आ रही है, मे बी इसके अंदर कुछ ब्रांड एम्बेसडर भी हो। अब अमिताभ बच्चन जो है कई ऐसे पब्लिक गवर्नमेंट की पब्लिक इनिशिएटिव लेकर आती है, जो कि टीवी पर आती है, वो अपील कर रही है लोगों से। वहां पर मे बी या तो बहुत इनिशियल चार्जेस या फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई ब्रांड एंडोर्समेंट चार्जेस उनको नहीं देने पड़ते हैं गवर्नमेंट को, लेकिन वो अल्टीमेटली पब्लिक को अवेयर बनाने के लिए होता है। वहां पे प्रॉफिट मेकिंग जो है मेन पर्पस नहीं होता है। टू मेक अवेयरनेस अमंग सिटीजन्स व्हेन द गवर्नमेंट इनिशिएट सम publicity messages to the general public, then this is called the non-commercial advertising. मैंने एग्जाम्पल पहले बता दिया, लाइक जागो ग्राहक जागो, लाइक स्टॉप टोबैको प्रोडक्ट्स एंड consuming alcohols, donate your eyes, donate your kidney, donate your blood, etc., etc. So this kind of advertisement is known as the non-commercial advertising communication. अब हमने क्लासिफिकेशन जो पांचवें कैटेगरी में किया है, वो मीडिया के हिसाब से किया है, कि हम अपने ऐड को मीडिया के हिसाब से कह सकते हैं कि कितने तरीके का ऐड होता है। पहला जो प्लेटफॉर्म है दैट इज प्रिंट मीडिया या प्रिंट एडवर्टाइजिंग। प्रिंट एडवर्टाइजिंग क्या है? जहां पे हमें प्रिंटेड फॉर्म में कोई कम्युनिकेशन देखने को मिलता है। किसी अखबार के ऊपर किसी कंपनी के प्रोडक्ट का ऐड आ गया, किसी पॉम्पलेट के ऊपर हमने जो है उसके ऐड को पढ़ा, बड़े बैनर्स के अंदर हमने पढ़ा, बड़ा होर्डिंग लगा हुआ है उसके अंदर पढ़ा। मतलब जो कम्युनिकेशन मैसेजेस हैं कंपनी की प्रोडक्ट से रिलेटेड या उनके ब्रांड एनहांसमेंट से रिलेटेड, वो चीजें लिख कर छप कर हमें देखने को मिलता है। और ऐसे एडवर्टाइजिंग को हम प्रिंट मीडिया एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। When the retained communications contents are publicized through different media platform using newspapers, magazines, pamphlet, hoardings, banners, etc. This is called the print advertising. ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग, जिसको हम ऑडियो विजुअल एडवर्टाइजिंग कहते हैं या टेली एडवर्टाइजिंग कहते हैं, वो क्या है कि चीजें लिखकर तो हमें नहीं मिलती है, बट उसका जो विजुअल या साउंड ऑडियो विजुअल ऑडियो इफेक्ट होता है वो दिखाई पड़ता है। जैसे टीवी के ऊपर हमने कुछ देख लिया, सुन लिया, कोई ऐड आ रहा है, रेडियो के अंदर हम सुन सकते हैं। एडवर्टीजमेंट जो आपके कई वेबसाइट के अंदर होता है जहाँ पे कुछ वीडियो मटेरियल्स होता है, उसको हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो ऐसे एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म को हम कहते हैं ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग। पर्पस वही है कि देयर इज अ ब्रांड एनहांसमेंट, देयर इज अ प्रोडक्ट एनहांसमेंट being carried out by a company, but the platform is the audio visual media. Audio visual means what? Like the TV is the audio visual, like the radio is a audio media, not the visual. तो जहां पर हम देखकर और सुनकर चीजों को एक्सेप्ट करते हैं और इन्फ्लुएंस होते हैं किसी कंपनी के प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो ऐसे एडवर्टाइजिंग को हम ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग कहते हैं।
आउटडोर एडवर्टाइजिंग वो एडवर्टीजमेंट होता है, जो नेक्स्ट कैटेगरी है, जो कि घर के बाहर यूजुअली किया जाता है। मतलब उसको हम जनरली ना तो अपने टीवी में देख सकते हैं, ना अपने रेडियो में सुन सकते हैं, ना और किसी दूसरे माध्यम से देख सकते हैं। यूजुअली हमारे घर के बाहर जब हम मार्केट में निकलते हैं, गली में निकलते हैं, तो कई जो एडवर्टीजमेंट स्पेस के अंदर हम कंपनी के प्रोडक्ट या उसके ब्रांड इमेज को देखते हैं। वैसे कौन कौन सी जगह हैं? बिल, बोर्ड, kiosk, and event and trade shows are on the effective way to convey the message of the company. Kiosk, आप मार्केट, शॉपिंग मार्केट में जा रहे हैं, वहां पे किसी कोने में एक कियोस्क लगी है, जहां पे एक कोई कंपनी का एड आ रहा है, चाहे वो डिस्प्ले फॉर्म में हो सकता है या किसी और ऑडियो विजुअल फॉर्म में हो सकता है। वहां पे आप रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन के अंदर एक जो है बड़ा सा बैनर लगा हुआ है, किसी होटल का या किसी दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूशन का ऐड आ रहा है। वहां पे कोई कियोस्क लगी हुई है, जहां से जो एक विजुअल मीडिया के जरिए हम चीजों को देख रहे हैं और उसको समझ रहे हैं। तो वैसे एडवर्टीजमेंट को हम कहते हैं आउटडोर एडवर्टाइजिंग, which is flashed, which is broadcasted on different media outside your house, in the market or the any public places. कवर्ट एडवर्टाइजिंग, कवर्ट एडवर्टाइजिंग एक खास तरीके का कॉन्सेप्ट है। वो क्या होता है कि जैसे मान के चलिए, आप कई बार फिल्में देखते हैं, कोई टीवी सीरियल देखते हैं या कोई ऐसा प्रोग्राम देखते हैं जहां पे डायरेक्टली आपको किसी ऐड के लिए अप्रोच नहीं किया जाता है। आप क्या करेंगे, जब प्रोग्राम देख रहे हैं उसके दौरान में ही जो वहाँ के एक्ट्रेस या एक्ट्रेसेस हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, जो उस प्रोग्राम के अंदर या उस फिल्म के अंदर आ रहे हैं, वो इनडायरेक्टली कई कंपनी की प्रोडक्ट को इनहेंस कर देती है। बहुत सारे ऐसे फिल्म आपको देखा होगा आपने, जैसे एक फिल्म मैं आपको याद दिला देता हूँ, जैसे चुपके चुपके, जो शाहिद कपूर की एक फिल्म थी। अगर आप उसमें देखेंगे तो बार बार किसी ना किसी छोटे नहीं कहूँगा, बड़े कंपनीज का एडवर्टीजमेंट इनडायरेक्टली हो रहा है। उसके अंदर जो राजपाल यादव था, याद है? जब उसको वो करीना कपूर के घर में, मतलब नौकर के रूप में काम करने के लिए रख लिया जाता है, और वो अ, मतलब गुस्से में जब कपड़े धोता है, इतना एक गट्ठर कपड़े धोने के लिए बैठता है, तो गुस्से में कहता है, हाँ, और जो है कपड़े दो, कपड़े दो, ये हमारे पास एक बहुत ही किफायती वॉशिंग पाउडर है जो सारे कपड़ों को धो देगा। दरअसल वहां पे किसका ऐड आ रहा है, आप देखिएगा, टाइड का ऐड आता है शायद। तो टाइड को ऐसे हाथ में लेकर बताता है, हाँ, बहुत किफायती वॉशिंग पाउडर है, इससे सारे कपड़े धुल जाते हैं। आप जैसे क्रिश देखे होंगे ऋतिक रोशन का, उसमें तो घड़ी 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 जो है किसी न किसी कंपनी का ऐड वो करता रहता है। कभी कॉम्प्लान लेके आ जाता है, कभी उसके अंदर किसी वॉशिंग पाउडर का एडवर्टीजमेंट आ जाता है, कभी कुछ। तो जब वैसे एडवर्टीजमेंट किसी सेलिब्रिटी के हाथ से प्रोग्राम के दौरान ही दिखाया जाए, और वो प्रोग्राम का पार्ट है, अलग से ऐड नहीं आती है उसमें, तो ऐसे ऐड को हम कहते हैं कवर्ड एडवर्टाइजिंग। इनडायरेक्ट फॉर्म में होता है, डायरेक्टली वो पब्लिक को नहीं बताता, लेकिन उस प्रोग्राम में जो सेलिब्रिटीज हैं उसके जरिए ही उस ब्रांड की एनहेंसमेंट हो जाती है। या जब कोई सेलिब्रिटी अपने डायलॉग्स में किसी कंपनी की प्रोडक्ट का नाम ले लेती है, कि ये जो है, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं कि ये फलाना प्रोडक्ट मैं यूज करता हूँ, या इस कंपनी का जो है मैं वॉच पहनता हूँ, या सामने टीवी जो है वो मेरी सैमसंग की है, एलजी की है। इस तरीके का अगर वो अपने डायलॉग के अंदर इंक्लूड कर लेता है, तो भी कवर्ड एडवर्टाइजिंग होता है वो। इट्स एन इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन वेयर देयर इज नो कम्युनिकेशन मेड अप बाय द कंपनी डायरेक्टली, but indirectly it is enhanced during the program by the celebrity, is called covered advertising. The public service advertising, ये कुछ आपका मिलता जुलता है जो नॉन कमर्शियल हमने पढ़ा था, जहाँ पे पब्लिक वेलफेयर के लिए एड्स आते हैं। गवर्नमेंट यूजुअली इसको स्पॉन्सर करती है। ऐसे इवेंट जैसे हमने आपको पहले बताया था कि भाई एड्स से रिलेटेड जागरूकता हो गई, पॉलिटिकल इंटीग्रिटी हो गई, एनर्जी कन्वर्जेशन कंजर्वेशन, इलिटरेसी, पॉवर्टी, इससे रिलेटेड जो कोई गवर्नमेंट का कोई इनिशिएटिव आता है टीवी में, हमें अगर इस तरीके का देखने को मिलता है, तो उसको हम पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग कहते हैं। नॉन कमर्शियल फॉर्म है, जहाँ पे कोई पैसा कंपनी या कोई स्पॉन्सरशिप बॉडी नहीं होती है, यूजुअली गवर्नमेंट
इन चीज़ों को फ्लैश करती है डिफरेंट मीडिया के जरिए, और जिसका ये पर्पस होता है कि जो कॉमन सिटीजन है कंट्री को, उनको अवेयर बनाए, ताकि वो इन पब्लिक मैसेजेस को पढ़कर जानकर जागरूक हो जाए कि भाई गरीबी हटाओ, या कभी गरीबी हटाने के लिए गवर्नमेंट के कौन कौन से जो इनिशिएटिव्स हैं, इलिटरेसी को हटाने के लिए गवर्नमेंट के पास क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं, या कैसे जो आम पब्लिक है वो इलिटरेट से लिटरेट बने, क्या इनिशिएटिव उनको लेना पड़ेगा, हम बिजली कैसे बनाए बचाएंगे, पावर कंजर्वेशन का क्या तरीका है, हम वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करें उसके लिए कुछ तरीका बताएं। तो इस तरीके के जो पब्लिक मैसेजेस हैं उनका पर्पस ये होता है कि जनरल पब्लिक को अवेयर बनाना इन सोशल इशू से, ताकि इन चीज़ों का वो लाभ उठा सके। ये वही चीज़ है जो हमने अभी आपको डिफरेंट कैटेगरी बताया था, कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया, मीडिया के बेसिस पे, ये उसी चीज़ का एक फिगर है और अलग से कुछ नहीं इसमें। Okay, this is the last slide that I think most of you wait for displaying. So yes, these turns come up. That's all about for the day. Any questions related with the different categories, the classification of advertisements, you can ask. Any doubt, any problems related with the classification of advertising, you can come up with your queries and questions. No questions? Okay, thank you then. Thank you very much.